ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਨਾਹੋ ਜਤੀ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮੂਰਖ ਮੁਗਦਾ ਜਨਮ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਣਬਤ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੀ ਸਰਣਾ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਨਾਹੀਂ ਬੀਸਰਿਆ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਨ ਕਮਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ ਹਰਿ ਰਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਮ ਨੀਚ ਕਰਮਾ, ਸਰਣ ਪਰੇ ਕੀ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਮਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸਹੁ ਕੁਰਸਹੁ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰ ਸਾਹਾਂਦੈ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ, ਸਭਨਾ ਦਾ ਬੇਸਾਹੋ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਤਾ ਮਾਰ, ਮਰ ਭਾਗੋ ਕਿਸ ਪਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਕੈ ਡਰ ਭੈ ਮਾ ਭਾਗੀਐ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਕੋ ਨਾਉ। ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਤਾ ਮਾਰ, ਮਰ ਭਾਗੋ ਕਿਸ ਪਹਿ ਜਾਓ। ਜਿਸ ਕੈ ਡਰ ਭੈ ਭਾਗੀਐ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਕੋ ਨਾਉ। ਮਾਰਹਿ ਰਾਖਹਿ ਏਕ ਤੂੰ, ਬੀਜੋ ਨਾਹੀਂ ਥਾਓ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕੋ ਚੀਲ ਕਾਚੋ ਮਤਹੀਨ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਕਛ ਨਹੀਂ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਮਤ ਕੀਨ, ਰਹਾਉ। ਅਵਗਣ ਸੁਬਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਗੁਣ ਕਿਉ ਕਰ ਜਾਓ। ਸਹਿਜ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਊਪਜੈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਤਨ ਨਾਹੇ। ਜਿਨ ਕੈ ਨਾਮ ਨ ਮਨ ਵਸੈ, ਸੇ ਬਾਂਧੇ ਦੁਖ ਸਹਾਏ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਸੇ ਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰ।
आगै पाछै सुख नहीं, गाडे लादे शार। बिछड़िया मेला नहीं, दुख कणो जम द्वार। आगै क्या जाना नाहे, मैं भूले तुम समझाए। भूले मार्ग जो दसे, तिसकै लागो पाए। गुर बिन दाता को नहीं, कीमत कहन न जाए। आगे क्या जाना नाहे, मैं भूले तुम समझाए। भूले मार्ग जो दसे, तिसकै लागो पाए। गुर बिन दाता को नहीं, कीमत कहन न जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुग जुग अटल चबर छत्र तख्त दे मालिक, बाणी के बोहित, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सबारे सत संगी जनों, आप जी ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। जो पावन शब्द आप जी ने हुणे ही श्रवण कीता है, इस पावन शब्द की आपां ने विचार श्रवण करनी है। आओ अपनियां मन बिरतियां इकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़िए ते सतगुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच बसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र, आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पहला, शब्द मरै तां मार, मर भागो किस पह जाओ। मारू राग दे विच पहले पातशाह आप नारायण कला धार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। ये पावन शब्द सतगुरां दे पावन अंक 1000
10 ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਤੀਸਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸਹਿਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਡਰ ਸਹਿਮ ਜੀਵ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕੁਚੀਲ ਕਾਚੋ ਮਤਹੀਨ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਮਤ ਕੀਨ। ਹੇ ਬਾਬਾ, ਹੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕੁਚੀਲ। ਕੁਚੀਲ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਹੋਵੇ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਮੱਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਦੁਰਮਤ ਵਰਤਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮੱਤੈ ਲੀਨੀ, ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ, ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹਿ ਕੀਨੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਮੱਤ ਭਾਵ ਹੈ ਖੋਟੀ ਮੱਤ, ਭੈੜੀ ਮੱਤ। ਫਿਰ ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਇਹ ਖੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੱਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਬਾਬਾ, ਹੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕੁਚੀਲ ਹਾਂ, ਭੈੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਕਾਚੋ ਮਤਹੀਣ, ਮੱਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਪਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਕਛ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਕਛ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਪੂਰੀ ਮਤ ਕੀਨ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਚੀ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਝ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕੁਟਲਤਾ ਜਨਮ ਕੁਭਾਤੀ, ਰਾਮ ਗੁਸਾਈਆਂ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ, ਮੋਹਿ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਹਰੋ ਬਿਪਤ ਜਨ ਕਰੋ ਸੁਭਾਈ, ਚਰਨ ਨਾ ਛਾਡੋ ਸਰੀਰ ਕਲ ਜਾਈ, ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰੋ ਤੇਰੀ ਸਾਂਭਾ, ਬੇਗ ਮਿਲੋ ਜਨ ਕਰ ਨਾ ਬਿਲੰਬਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਭੈੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕੁਟਲਤਾ ਜਨਮ ਕੁਭਾਤੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ,
उदों समा इहो जिहा सी कि नीवी जात विच भगत जी का जन्म होया ते लोग बड़ा दुकारदे सी। इत्थों तक शूद्रां दी हालत बड़ी तरसयोग सी। जेकर किसे अमीर दे खूह दे उत्ते कुत्ता भावें पानी पी लवे, जे किते शूद्र ने पी लिया तो गुरु सवारियो फिर उन्होंने सज़ा दी जाती सी। इत्थों तक जदों किसे रास्ता जिहड़ा इस रास्ते तो लंघना है, जे शूद्र लंघ के आउंदा सी ना, उहदे वस्त्र दे नाल पिछले पल्ले दे नाल एक झाफा बन्निया जांदा सी दरखत दा, ताकि जिथे शूद्र की पैड़ लगे वो नाल साफ होंदी जावे। फिर इत्थों तक गुरु सवारियो जिथे गल विच शूद्र दे एक टल्ली पाई जाती सी। रात नूं जो शूद्र ने तुरना ना, शूद्र ने तुरन वेले उहदे गल टल्ली पाई जानी, ते टल्ली बजनी तो लोगों ने वड्डियां जातां वाले लोगों ने इधर उधर हो जाना, कहते भाई पिछे हट जाओ, पिछे हट, शूद्र आ रहा। जे शूद्र का परछावां साडे उत्ते पै गया तो असीं भिट जावांगे। इतिहादक इहो जी सोच सी। पर आप बारे जाइए गुरु दशमेश पिता महाराज तो, गुरु नानक साहब महाराज तो, जिन्होंने अपना मित्र बनाया जात का मरासी भाई मरदाना जी, नीवी जात वाले सी। ते लोकां विच लोकां नूं जात पात दे भरम जाल चों कड्ढण दे लई सतगुरु जी ने जदों आवाज़ मारी सी ना, पहली बारी मिलाप होया भाई मरदाने जी नाल, ते उदों सतगुरु कहण लगे भाई, तो भाई शब्द सुनिया तो भाई मरदाना जी देखते ने कि मैनू भाई आख्या, मैनू कहते ने ओए मरासी आ। इस तरह का मैनू इस तरह के शब्द वरते जाते, मैनू तुसी भरा आखना कीता, कित्थे तुसी वड्डी कुल विच तुहाडा जन्म होया, तुहाडे पिता जी पटवारी ने, ते मैनू तुसी भरा आखना कीता। गुरु नानक पातशाह कहण लगे हाँ भाई मरदाना जी, तुसी मेरे भरा हो, ते मेरे भरा हो। ते गुरु नानक ने गुरु सिरे बाह पकड़ी भाई मरदाने दी, ते जिथे जिथे धन गुरु नानक दे महाराज गए ने ते भाई मरदाने जी नूं अपने नाल रखे आ। जदों आपां गुरु नानक पातशाह दी हिस्टरी पढ़ते हैं, सतगुरु की जीवनी पढ़ते हैं, तो जीवनी गुरु नानक पातशाह दी भाई मरदाने जी तो बिना अधूरी है। जिथे जो सतगुरु शब्द उचारण करते हैं तो भाई मरदाने नूं आखदे ने कि परमात्मा की सिफत करिए, भाई मरदाना जी रबाब तैयार करो। तो भाई मरदाना जी रबाब बजाते ने, तो गुरु नानक पातशाह महाराज फिर शब्द उचारण करते हैं। सो कहण दा भाव सतगुरु जी ने वडियाइयां देना कीतियां, मान दिता है। तो भगत रविदास साहिबान का समा भी इहो जिहा सी। उदों एक तां नीवी जात जन्म होया, दूजा वो थां ते जन्म होया जिहड़ी थां गुरु सवारियो इन्हां पांडियां दा गढ़ मन्निया गया, बनारस की धरती ते उत्थे बैठ के भगत रविदास साहिबान जी परमेश्वर की उस्तत करते हैं। तो उस्तत करके गुरु सवारे फिर ये वडियाई मान सन्मान प्राप्त किया, सਦੀवी काली अमर हो गए। अज जो आप गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं मत्था टेकते हैं, उन्हां भगतां 15 भगतां नूं मत्था टेकिया जांदा, 11 भट्ट साहिबान नूं मत्था टेकिया जांदा है, ते ये सारे भगत अमर होए ने। सो भगत जी कहते ने कि हे परमात्मा, मेरा कर्म कुटलता जन्म कुभाती, मेरे खोटे कर्म ने, मेरा जिहड़ा जन्म है ये नीवी जात विच होया है, लोग मैनू शूद्र शूद्र आखदे ने। मेरा कर्म कुटलता जन्म कुभाती, राम गुसैया जी के जीवना, मोहे ना विसारो मैं जन तेरा। गुसैया का अर्थ है मालक, सारियां दा साईं, सारियां दा मालक, जीवां नूं जीवन देण वाला।
मैं जन तेरा हाँ मेरे मालक जी मेरे उत्ते किरपा करो। मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण न छाडो शरीर कल जाए। देखो किन्ने कमाल दे वचन करते, कहते बेशक हे परमात्मा मेरे शरीर की सत्या चली जावे पर मैं आप जी के चरणों का भोरा बन के रवांगा, आप जी के चरणों नूं छड्डांगा नहीं। बेशक मेरा शरीर दे साह जिहड़े मुकदे हैं, शरीर मेरा कमज़ोर हो जावे। कहो रविदास परो तेरी सांभा, बेग मिलो जन कर ना बिलांबा। रविदास जी कहते ने हे वाहिगुरू हे परमेश्वर जी मैं तुहाडी सांभा शरण विच आया हाँ, मैनूं छेती मिलना करो, आप जी बिलांबा देरी ना करना करो। तो गुरु सवारे इस प्रकार सतगुरु जी ने ये साडे उत्ते बख्शिश की है। तो अज दे पावन शब्द द्वारा भी यही वचन सतगुरु जी कर रहे ने। कहते ने बाबा मैं कुचील काचो मत हील, कुचील हाँ कच्चा मत करके मत तो हीना हाँ, कच्चे पिल्लियां की संगत करके कच्चा पिल्ला बन गया हाँ। मेरे को शुभ गुण नहीं हैं, मेरे को अकल नहीं है जिहदे राही मैं आप जी के गुणों का ज्ञान कर सका। इस प्रकार ही भाई साहब भाई गुरदास जी के आप बचन पढ़ते हैं ना, भाई गुरदास जी भी अपने आप नूं नीमा दसदे ते परमेश्वर के सन्मुख बेनती करते ने। दसिया सानू तरीका कि इस प्रकार तुसी प्रभु के चरणों च बेनती करनी है। भाई साहब जी के बचन कि तोसो ना नाथ अनाथ ना मोसर, तोसो ना दानी ना मोसो भिखारी। हे वाहिगुरू हे गुरु जी तोसो ना नाथ, तुहाडे जैसा कोई मालक नहीं है तो मेरे जैसा अनाथ कोई यतीम नहीं है। अनाथ का अर्थ है यतीम जिहदा कोई सहारा ना होवे। जिस बच्चे के माता पिता का साया उठ जाए सिर उत्तों तो संसार की बोली उस बच्चे नूं आख्या जाता कि ये बच्चा यतीम हो गया, ये बच्चा अनाथ हो गया। तो भाई साहब जी कहते हे वाहिगुरू मेरे जैसा कोई अनाथ नहीं तो तुहाडे जैसा कोई नाथ नहीं है, मालक नहीं है। तोसो ना दानी ना मोसो भिखारी। हुण देखो आप सारे ही जिथे भी संसार विच किते भी जीव बस रहा है, चाहे सिख धर्म है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, जैनी है, बोधी है, किसी भी धर्म नाल रिलेटेड ने। हर एक धर्म के अपने अपने गुण ने, अपनी अपनी मत अनुसार धर्म के अनुसार इष्ट के अगे परमेश्वर के अगे सारे जोदड़ियाँ करते हैं। हालांकि रब एक है, परमात्मा एक है, पर उहदे बखरे बखरे नाम रख दिते गए। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गुसाइयाँ, कोई अलाहे, कारण करन करीम, कृपा धार रहीम। परमात्मा एक है तो बखरे बखरे मजहब होने करके बखरे बखरे तरीके दे नाल उस वाहिगुरू नूं चेते किया जाता है। तो उस वाहिगुरू नूं चेते करके सारे ही अपने अपने तरीके दे नाल उस मालक पासों मंगते ने, वाहिगुरू पासों मंग रहे ने। तो चाहे कोई चक्रवर्ती राजा है, चाहे गुरु सर एक भिखारी है, चाहे अमीर पुरुष है, चाहे एक गरीब पुरुष है, हर एक इंसान उस वाहिगुरू पासों मंग रहा। इसका मतलब ये होगा कि परमात्मा ही सब तो बड़ा दाता है। बाकी चाहे कोई राजा चाहे भिखारी है, सारे एक तरह के भिखारी ने। वो वक्री गल है, जिहड़ा राजा है वो बड़ा भिखारी है
ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਰ ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 2 ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੁਣ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੋਸੋ ਨਾ ਦਾਨੀ ਨਾ ਮੋਸੋ ਭਿਖਾਰੀ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ तेरे जैसा दानी कोई नहीं, मेरे जैसा भिखारी कोई नहीं, मैं सब तो बड़ा भिखारी हम भीखक भिखारी तेरे तू निजपत है दाता। ते सतगुरु इत्थे बचन कर रहे ने, कहते ने मालक जी मेरे विच बड़े औगण ने, मैं कच्ची मत वाला हाँ, मत तो हीना हाँ, क्योंकि नाम बिना को कछ नहीं, प्रभु दे नाम तो बिना कोई कुछ नहीं है। गुर पूरै पूरी मत कीन। जदों मैं पूरे गुरु दे लड़ लगे आ, गुरु साहबान दे कोल गया, गुरु ने मेरे उत्ते बख्शिश की, मैनू श्रेष्ठ अकल बख्शना की। गुरु ने अपने दरों नाम की दात बख्शी, इस नाम नू जप के मेरी मैं कच्ची मत वाला पक्की मत वाला बन गया, गुरु की मत का धारनी बन गया, क्योंकि अपनी मत त्याग दी, गुरु की मत का धारनी बन के गुरु साहबान के गुणों का गहन करन लग पिया। इस करके मेरे गुरु ने मेरे उत्ते ये बख्शिश की है, शब्द मरै ता मार, मर भागो किस पह जाओ, जिसकै डर भै भागी है, अमृत ताको नाओ। शब्द मरै, हर एक मनुख चाहे एक गरीब है चाहे अमीर है, हर एक नूं किसी ना किसी का डर भै है संसार विच विचरदियां होए। बड़ा इंसान अपने बड़े तो डरदा है। एक जिवें आपां कह दईए पिंड दा सरपंच है, वो अपने वड्डे अफसरां तो डरदा है। तो इस तरह एक गुरु सवारे जिला परिषद मैंबर बन गया, उस तो बाद फिर MLA की टिकट मिल गई, MLA बन गया। फिर वो अपनी सरकार तो डरदा, मुख्यमंत्री तो डरदा, मुख्यमंत्री अगे प्रधानमंत्री तो डरदा है, प्रधानमंत्री जिहड़ा है अगे वो गुआढ़ी देश के राजा तो डरदा है। आप तो वड्डियां तो सारी किते मन डर हुंदा है। भाव कहण दा किसी हर एक मनुख नूं किसी ना किसी का डर सताउंदा है, पर परमात्मा जिहड़ा है वो डर तो रहत है। ते सतगुरु किरपा करके दसो, ये मौत का डर, प्रतख डर, ये किवें दूर हो सकता है? सतगुरु कहते शब्द मरै ता मार, मर भागो किस पै जाओ। सब तो पहला भाई इस मौत के डर नूं अपने अंदरों कहते गुरु दे अपने आप नूं गुरु दे शब्द राही मारना, अपने आप नूं शब्द राही मार। कबीर सतगुरु सूर में बाह्या बान जो एक, लागत ही पे गिर परिया परा कलेजे शेख। पर नाल कबीर साहबान जी ये भी कहते ने, कबीर साचा सतगुर क्या करे जो सिखा मैं चूक, अंधे एक ना लागे जो बांस बजाइए फूक। कहते सतगुरु ने तो शब्द रूपी तीर छड़ दिता, निशाना लगिया हिरदे नूं जाके बिन गया, तो उन्होंने अंदर विराग पैदा होया, घाह पैदा होया, जिहदे राही उस मालक वाहिगुरू नूं मिलण दी तांघ पैदा हो गई। पर एक ऐसे ने जिन्हां नूं सतगुरु उपदेश दे रहे ने, तो बार बार सतगुरु कह रहे ने कि भाई नाम जप लो, अमृत वेले की संभाल कर लो, बाणी पढ़ लो, शब्द का अभ्यास करो। उन्हां दे मनां उत्ते कोई असर नहीं हो रहा। उन्हां दे बाबत सतगुरु भगत जी कहते ने कि साचा सतगुर क्या करा जो सिखा मैं चूक। सिखा विच ही कहते चूक है, सिख ही आलसी ने, सिख ही गुरु के उपदेश नूं मनण लई तैयार नहीं हैं। कहते फिर वो सतगुरु उत्थे की कर लैणगे। हालत इहो जी कहते
कहते ज्यों बांस बजाइए फूक, अंधे एकन लागे ज्यों बांस बजाइए फूक। तो इस तरह की हालत गुरु सर इन्हां मनुखां दी मानो ज्ञान रूपी नेत्र ना होण करके ये मनुख जीव जिहड़ा है अंधला है, गुरु के उपदेश नूं इह कमा नहीं सकिया। तो इत्थे गुरु साहबान कहते तू अपने पहला अपने संकल्पां विकल्पां नूं मार, क्योंकि जो तक आपां मैनूं नहीं मारदे उदों तक गुरु सवारिओ सानूं मालक की खुशी नहीं मिल सकती है। वाहिगुरू दीयां खुशियां लैण वास्ते सानूं अपने आप नूं मारना पवेगा। जदों पंज प्यारे साहबान अमृत छकाउंदे ने गुरु की हजूरी विच, अमृत छकण तो पहला अमृत अभलाखी नूं पुछया जांदा है कि किहदी मर्जी ना आया, किसी राजनीतिक दबाव दे नहीं या किसी लालच वास्ता नहीं अमृत छकण आया। अगों फिर अमृत अभलाखी कहता नहीं, मैं अपनी मर्जी दे नाल आया, मेरा मन कीता कि मैं अमृत छकां, मैं सिंह सजा। फिर पंज प्यारे साहबान कहते हुण गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेक। फिर अमृत अभलाखी मत्था टेकदा, फिर मत्था टेकण उपरंत पंज प्यारे साहब नूं उपदेश दिंदे ने कि अज तो जिहड़ा सीस है ये गुरु दा समझना, ये सीस किसी होर अगे नहीं झुकना चाहिए। अज तो बाद अपने गुरु नूं तन मन धन करके पूजना है, सब कुछ गुरु नूं अर्पण करना है। जे तू इन्हां बचनां दा धारनी बन गया फिर तेरे उत्ते गुरु दीयां बख्शिशां होणगीਆਂ, गुरु तेरियां झोलियां भर देवेगा। भाव कहण दा कि अपना सब कुछ गुरु नूं अर्पण करके फिर गुरु दीयां गुरु खुशियां मिलदियां ने। भाई मंझ जी जिन्हां दा पहला नाम तीरथा सी, नगर दा चौधरी सी, गुरु पातशाह की हजूरी विच आया, कहन लग्या पातशाह कृपा करो सिक्खी दी दात बख्शो। तो पातशाह कहन लगे पहला जिहड़ी सखी सरबर दी थां बनाई ना अपने घर उहनूं ढाणा कर। भाई मंझ ने गुरु का हुक्म मान के वो सखी सरबर की थां ढा दी। फिर आ गया कि पातशाह कृपा करो, गुरु साहबान जी के चरणा सतगुरु कहें की लेना सिक्खी लैके। सिक्खी लैण दे नाल अज तू नगर का चौधरी है, तेरी चौधरता खत्म हो जाएगी। तेरे घर विच अज 36 प्रकार के पकवान ने, कल नूं तू एक समय का प्रसादा छकण दा मोहताज हो जाएगा। तो गुरु साहबान के बचनां नूं मन्निया, कहन लगे नहीं पातशाह जो मर्जी हो जाए सिक्खी देना करो। तो नगर की चौधरता भी चली गई। हौली हौली ऐसा समय ने करवट लई कि घर के जिन्ने पशु डंगर सन वो भी सारे खत्म हो गए, जमीन जायदाद भी सारी विक गई। हुण गुरु सर जिथे नगर का चौधरी सी, अज नगर च लोकां दे घर काम करके अपने घर का गुजरान करदा है। तो गुरु ने परचा पा दिता, सतगुरु जी ने परचा कैसा पाया, एक हुक्मनामा भेजिया। हुक्मनामा भेजिया तो सतगुरु कहन लगे पहला 21 रुपये लैने ने, फिर भाई मंझ नूं ये हुक्मनामा देना है। तो सिख गया। भाई मंझ जी बड़े खुश होए कि गुरु साहबान ने मैनू हुक्मनामा भेजना कीता। कहन लग्या लिया गुरु के सिखा मैनू हुक्मनामा दे। सिख कहन लगे पहले 21 रुपये भेटा देना कर, गुरु साहबान ने बचन कीते ने। भाई मंझ हुण घर विच 1 रुपया नहीं है, अपनी घरवाली नूं शाहूकार दे घर नौकरानी ला के गुरु सवारिओ 21 रुपये भेटा लई। 21 रुपये लैके वो भेटा गुरु अर्जन देव नूं देना कीती, वाहिगुरू सिख नूं देना कीती है। तो हुक्मनामा पढ़िया, बड़े खुश है कि गुरु की प्रसन्नता, गुरु मैनूं याद करदा। समा लंघिया तो समा लंघण तो फिर सतगुरु ने एक हुक्म होर भेजिया। तो नाल ही पातशाह ने फिर 21 रुपये की मंग की है। हालांकि गुरु पैसों का भुखा नहीं सी, गुरु कोल तां गुरु सवारिओ भंडारे भरे हुए ने, केवल ये सिख की परख सी
कि बाकी सिख अपने सिदक विच पूरा है। तो दूजी बार जो हुक्मनामा भेजे आ, फिर भाई साहब ने आख्या कि पहला 21 रुपये देना करो। तो उदों भाई मांझ ने अपनी लड़की गुरु सरे वो शाहूकार दे नौकरानी लाई। तो जो हुक्मनामा पढ़िया, हुक्मनामे उत्ते लिखिया होया कि हुक्मनामा पढ़दियां सार साडे कोल पहुँचना कर। ते भाई मांझ ने तैयारी की है। आप जी सारे इतिहास तो जाणू हो कि किवें फिर भाई मांझ जी गुरु के लंगरां विच आके सेवा करते हैं, सेवा कर रहे तो लंगर विचों प्रशादा छक लेना। तो गुरु साहबान जी ने पुछया नहीं, जो 2-3 महीने टप्पे ने फिर सतगुरु पुछते हैं कि जिहड़ा भाई मांझ आया गुरु का सिख वो कित्थे सेवा करता है? सतगुरु लंगरां विच। प्रशादा कित्थे छकदा? पातशाह गुरु के लंगरां विच। सतगुरु कहण लगे फिर ये तो मजदूरी हो गई है, मेहनत की तो लंगर छक लिया, ये सेवा नहीं है। तो भाई मांझ जी की गुरु सर उस समय भाई मांझ नूं पता लग्या तो पानी पी पी के अपना गुजरान कर लग पे। जिहड़ियां संगत दीयां जूठियां पतलां ने उन्हां विचों लंगर बचिया होया छकदे ने। ते इंज गुरु सवारिओ फिर एक दिन सतगुरु ने ऐसी खेड़ वरताई है, जंगल विचों लकड़ां लिआउंदे ने गुरु के लंगरां वास्ते। झक्खड़ चलिया, खूह विच डिग गए, सुक्का खूह सी, थोड़ा थोड़ा पानी सी। ते सतगुरु गुरु अर्जन देव मारा रस्सा लैके दौड़े ने नंगे चरणी। जो कोल पहुँचे तो पातशाह कहन लगे भाई मांझ कहन लगे भाई बाहर आना कर रस्सा पकड़ के। तो अगों गुरु सरे भाई मांझ जी कहन लगे नहीं, पहला ये लकड़ां बाहर बालन बाहर कढ़ना करो, इस बालन दे नाल मेरे गुरु का लंगर तैयार होना है। पहला ये बालन बाहर कढ़ो, फिर मैं बाद विच निकलांगा। तो गुरु सरे वो बालन कढ़िया। फिर भाई मांझ जो बाहर आए देखा कि आवाज़ देने वाला कोई होर नहीं सी, वो सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज खुद सन। फिर सतगुरु जी ने एडी बड़ी बख्शिश की, भाई मांझ नूं खिताब देना कीता कि मांझ प्यारा गुरु नूं गुर मांझ प्यारा, मांझ गुरु का बोहिथा जग लंघण हारा। तो गुरु सवारे इस तरह कहण दा भाव है कि इस तरह अपना तन मन धन सब गुरु नूं अर्पण करना पैंदा है, फिर गुरु दीयां खुशियां प्राप्त होंदियां ने। अपने आप नूं मारना पैंदा है, फिर सतगुरु दीयां खुशियां उस प्रभु दीयां खुशियां मिलदियां ने। वो वचन सतगुरु रंभता विच करदे ने, कहंदे ने भाई शब्द मरै। ते जिहड़ी मैं ना ये शब्द दे नाल मरनी है, गुरु के उपदेश राही। तां मार कहंदे फिर तू भाई मार ना कर, अपने मन नूं अपने आप नूं मारना कर। मर भागो किस पै जाओ, जो तेरे मन के संकल्प विकल्प सारे मर गए, फिर तेरा मन भज के किधर नूं जावेगा? भव किते नहीं जावेगा। जो मन के संकल्प विकल्प ही मुक गए, फिर मन एक थान ते केंद्रित हो जाएगा, अन इच्छा रहत ये मन हो जाएगा। तो कहते इस करके भाई सब तो पहला तू अपने आप नूं मारना कर, अपने मन के संकल्प विकल्प खत्म करना कर, फिर तेरा मन एक केंद्रित होवेगा। जिसका डर भै भागी है अमृत ताको नाव। जिस प्रभु दा जिस बालक दे नाम तो हिरदे अंदरों डर मुक जाता है। 7 प्रकार 5 प्रकार का भरम है, 7 प्रकार का डर है, भै है गुरु सर, ये सारा मुक जाता है। तो पातशाह कहते ने उस मालक का नाम है अमृत। अमृत तो भाव है मृत्यु तो रहत करन वाला। उस मालक का नाम कहते अमृत मृत्यु तो रहत करन वाले नाम नूं जपना कर। कहते तेरे अंदरों सारा डर, मौत का डर, विकारां का डर इत्यादि सारा डर तेरे अंदरों खत्म हो जाएगा। मार है राख है एक तू बीजो नाही थाओ। हे वाहिगुरु तू आप ही जीवां नूं मारन वाला ते आप ही जीवां दी रखिया करन वाला है। ते तो बिना कोई होर दूजा है ही नहीं है। जिहो जे जीव बीज बीजते ने
ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਕਰਮਾਂ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਜੀਵਾਲਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਅਵਗਣ ਸੁਬਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਓ। ਸਹਿਜ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਤਨ ਨਾਹੇ। ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਔਗਣ ਹਨ, ਮੈਂ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇਤੇ ਔਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਛ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਜੀੜਾ ਅਗਨ ਬਰਾਬਰ ਤਪੈ, ਭੀਤਰ ਬਗੈ ਕਾਤੀ। ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ। ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ। ਤੇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਈ। ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ। ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ, ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰ ਆਪਣੇ। ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੈ, ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ। ਜਿਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ, ਜਿਉ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ। ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੀ ਆਪ ਪੈਜ ਰਾਖੀ। ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ। ਅਵਗੁਣ ਸੁਭਰ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਣ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹਾਂ। ਬਿਨ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ ਪਾਉ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੋ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਗਹਿਓ ਮੋਹੇ ਹਰ ਰੰਗ ਭੀਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਨੇ ਜਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੁੰਦਰ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਔਗਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਭੋਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਗਣ ਹਨ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਹਿਜ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਤਨ ਨਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਬੋ ਲਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਖ ਉਪਜੈ, ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ।
ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਸੁੱਖ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣਾ, ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਸ਼ਟ ਆ ਜਾਣ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਪਵੇ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਛੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਉਹ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਤੜਫਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਖੀ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਕ ਮਿਕ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਉਪਜੈ, ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਧਨ ਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੈ ਨਾਮ ਨਾ ਮਨ ਵਸੈ, ਸੇ ਬਾਂਧੇ ਦੁਖ ਸਹਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਸਹਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਸੇ ਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪਦ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਸੇ ਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਹਨੂੰ ਆਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ। ਜੀਵ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕੇਸਾਂ ਧਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ, ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੂ ਸਾਜ ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ,
जो सिर साईं ना निभै सो सिर कप उतार, जो सिर साईं ना निभै सो सिर कीजै काएँ, कुन्ने हेठ जलाइए बालन संधै थाए। गुरु कहता कि अमृत वेले उठ ते अमर छकिया होया ते अपना कई बारी कई इहो ਜਿਹੇ परिवार देखना कीते ने ਜਿਹੜੇ गुरु सवारे 7-8 वजे अपना कशहरा भरन ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ कि मेरा कशहरा भरना कित्थे पिया होया है। नहीं, मर्यादा विच आपां रहीए जो साडे गुरु दा हुक्म है। जे तुहानूं कोई सवाल करे कि की लोड़ अमृत वेले उठण दी, तुसीं अगों उत्तर दिया करो कि भाई साडे गुरु दा हुक्म है कि सिख ने अमृत वेला संभालना है। अमृत वेला साडा ये साडा नहीं है, असी नहीं कह रहे, साडा गुरु कह रहा है कि अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। ये गुरु कह रहे, इस करके गुरु के बचना उत्ते असी पहरा दे रहे हैं। जो तुसीं संभाल करन लग पे तो उदों गुरु सवारिओ साडा फिर ये जिहड़ा जीवन है ना, असी इस जन्म दे विच उस मालक नाल एकमेक हो सकते हैं, जम्मण मरण तो रह असी हो सकते हैं। तो सतगुरु कहते ने भाई जिन्हां ने उस मालक के नाम नूं विसारिया होया है, भुलाया होया, भुले फिरदे ने, से कित आए संसूदा आण संसार विच आउण दा की फायदा है, काहनूं संसार विच आए, क्योंकि आगै पाछै सुख नहीं गाडे लादे शार। आगै उस लोक विच पाछै परलोक दे विच, ये लोक ते परलोक नूं सुख नहीं नसीब हुंदा। उन्होंने तो अपने कर्म इस तरह साड़ के सुआह कर ले ने, मानो जिमें कहते सुआह बन जाती कि गड्डी है, मानो एक तरह कहते गड्डियां सुआह नाल भरिया होवे ना, सुआह नाल गड्ढे भरे होण बड़े बड़े, कहते इस तरह मानो गड्डियां भरियां हुईयां ने, कर्म ये माड़े कीते ने, कोई चंगा काम नहीं कीता है। बिछड़िया मेला नहीं दुख घणो जम द्वार। संसार विच विचरदा होया मनुख अपने मित्रां साथियां संगियां दे नाल संगत करदा, उन्हां नाल मिल के कई बारी धर्म तो उल्ट कर्म कर दिंदा है। हालत पता कैसी हो गई है, कई परिवार इहो जी भी देखना कीते साडे कोल कई वार इत्थे आउंदे ने, जिहड़े कहंदे ने बाबा जी साडी अरदास बेनती करो। पुछीदा पर काहदी अरदास करनी है कि मैं अमर छकिया होया, अमर छकिया होया पर मेरी लड़की दी या लड़के दी शादी सी, कुड़म घर दे विच आए ते कुड़मां नाल बैठ के मैं 2 पैग लाणा कीते, जिस करके मैं अपनी भुल बख्शाणा चाहुंदा। पहली गल तां गुरु सर ये है कि जदों इहो जी करैत हो जावे, कल्ला ग्रंथी सिंह अरदास करके भुल नहीं बख्शा सकदा। 5 प्यारे साहबानां दे कोल पेश होना पैंदा है। वो 5 प्यारे साहबानां दी मर्जी है, की तनख्वाह लाते ने, की अगों हुक्म करते हैं, उन्होंने गुरु की हजूरी विच हुक्म सुनाना गुरु का हुक्म रहत मर्यादा अनुसार। तो ये की सी, दुनिया दी अपने संबंधियां नूं मुख रखदियां, लोक लज्जा नूं मुख रखदियां होइयां, मित्र सज्जन ने कह दिता, कुड़म ने कह दिता शराब पी नशा खा, ते खाण लग पिया। ते गुरु कहंदा सिखा अमृत छक, सिखा बाणी पढ़, वो मनण लई तैयार नहीं है। कित्थों दी सियाणप है। इस करके गुरु सरे इंज गुरु दीयां खुशियां नहीं मिलनियां। गुरु दीयां खुशियां लैण दे लई सानू गुरु दे बचनां उत्ते पहरा देना पवेगा। सो सतगुरु इत्थे बचन करदे ने, कहंदे भाई जिहड़े इस तरह फिर विछड़ जांदे, साक संबंधियां करके सारा ये गलत काम कीते ने, जो समा आया फिर विछोड़ा पै गया। सतगुरु जो विछड़िया मेला नहीं, एक बार विछड़ जाते ने दुबारा उन्होंने फिर मेला मिलाप नहीं होंदा। दुख घणो जम द्वार, जिहड़े साक संबंधियां करके माड़े कर्म कीते सी, धर्म तो उल्ट कर्म कीते सी, हुण उन्हां दा मालक दी दरगाह वेखे हिसाब किताब होण लग पिया। उत्थे फिर जमां दी मार सहनी पई,
बड़े दुख झलने पे। उतों फिर उदों वो जी पश्चाताप करदा कि इन्ना सोहना मनुखा जन्म मिलिया सी, पर मनुखा जन्म मैं एवें ही अजाई गवा दिता। इस तरह मनुख गुरु से पश्चाताप करता है। ये गुरु सवारे सतगुरु जी ने साडे उत्ते बख्शिश की है। 3 पदियां की विचार गुरु साहिबान जी ने आप करवाई है। बाकी रहिंदे शब्द की विचार आपां कल वाले दीवाना विच करांगे। होईयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा। आओ